Hello student, welcome to all of you in my YouTube channel. Today I am going to discuss about error और different types of error को हम लोग बहुत अच्छे से example के ज़रिए systematically understand करेंगे और errors के ऊपर numericals कैसे पेपर में पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। डिफरेंट प्रोफाइल के क्वेश्चन एरर पे कैसे हम परसेंटेज एरर निकालेंगे, रिलेटिव परसेंटेज एरर निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, ट्रू वैल्यू निकालेंगे, ऑल दोज थिंग्स आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एरर के बारे में बात करते हैं। एरर का मतलब क्या होता है? तो एरर, हाउ वी कैन फाइंड आउट द एरर। एरर निकालने का हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं E इज इक्वल टू TV माइनस MV। अभी अच्छे से हम एक्सप्लेन करते हैं। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू विल गिव यू द एरर। तो जैसा कि हम आपको बताए थे कि एरर होता क्या है, तो एरर को बेसिकली हम कैसे समझेंगे? तो बहुत सी सिंपल चीज़ है कि जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं और हम उसके एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करते हैं, जैसे कि मान के चलिए सपोज वी हैविंग दिस chalk holder. Suppose we know the correct dimension of this chalk holder is 10 centimeter and I am measuring, my measurement is coming 1.8 centimeter. So what happened? 0.2 centimeter is error. So we have to, how we can calculate the error? So what is their correct value, and from that correct value we can subtract the measured value. The difference is coming as in the form of error. Error may be positive, error may be negative. Sometimes our measured value will be less than the true value, but in some cases our measured value is greater than the true value. So like that one we can find out the error. True value minus measured value. Here two things you have to keep in mind. Either we having given the true value, अगर हमारे पास ट्रू वैल्यू है तो हम इजीली कंपेयर करके एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ट्रू वैल्यू नहीं है तो हाउ वी कैन फाइंड आउट द ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है उस हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, ट्रू वैल्यू या इसी को हम लोग मीन वैल्यू भी कहते हैं। ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू तो कैसे निकालेंगे, जिसको हम लोग इंडिकेट कैसे करते हैं, इसको हम लोग सिंपली ऐसे लिख देते हैं ए मीन। तो ट्रू वैल्यू क्या होता है? तो इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द measured value of the given physical quantity, यानी कि अर्थमेटिक मीन है ये ऑफ ऑल द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। दैट मीन्स एक फिजिकल क्वांटिटी का जितने बार हमने मेजरमेंट किया, जितना टाइम्स भी मेजर किया है, उन सारे का जो मीन वैल्यू होगा दैट विल गिव यू द ट्रू वैल्यू। तो प्रैक्टिकली हम इसको कैसे समझेंगे? लेट A1, A2, A3 up to AN be the measured value of the given physical quantity, then there a mean, that means true value or mean value will be, how we can find out,
A mean is equal to A1 plus A2 plus A3 up to An divided by n. So this value will give you the true value. This value will give you the true value, and by this method we can find out. Now we can rub. Another part is, now we are getting the true value. From example, just we try to understand. Suppose let us we can describe all those related mathematical formula, then only we can, through one question I will explain you. Another part is, now we already get it out the true value. After that true value we can find out the concept of absolute error. How we can find absolute error? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? खास। दैट मीन्स व्हेन वी फाइंड आउट द एरर इन ईच एंड एवरी मेजर्ड वैल्यू, सच काइंड ऑफ एरर इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर। तो सपोज वी आर गेटिंग A1, A2, A3 up to An are the let. A1, A2 up to A3 up to An are the measured value. Then the absolute error becomes, suppose in first quantity we can find out. So how we can find out the value of absolute error? For absolute error we are putting delta A1, because in first measured value we can find out the absolute error. So what is the formula? Mean value, A mean minus measured value. That means how we can find out absolute error? Absolute error we can find out by this method. Absolute error is equal to TV minus NV. That is the format for finding out the, this is also the concept, this will also give you the error, this will also give you the error, but here each and every measured value we can find out. हर एक मेजर्ड वैल्यू के अंदर जो एरर को फाइंड आउट कर रहे हैं, डेट्स वाई हम इसको क्या कह देते हैं? एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू जो है, ट्रू वैल्यू तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, लेकिन मेजर्ड वैल्यू इंडिविजुअल होगा। यानी कि एक फिजिकल क्वांटिटी का अगर सपोज करिए हम 5 टाइम्स रीडिंग लिए हैं, तो हर एक रीडिंग को हम माइनस करने के बाद ट्रू वैल्यू में से जो निकालेंगे वो हर एक मेजर्ड वैल्यू के अंदर हम उसका पार्टिकुलर एरर निकालेंगे, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। तो जैसे एग्जांपल डेल्टा A1 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? A मीन माइनस A1। सिमिलरली डेल्टा A2 इज इक्वल टू, इसको हम A बार से भी इंडिकेट कर सकते हैं, A बार लिखे या A मीन लिखे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस A2। डेल्टा A3 इज इक्वल टू A बार माइनस A3। इसी तरह से अप टू चला जाएगा डेल्टा AN इक्वल टू A बार माइनस AN। तो इस फॉर्मेट के ज़रिए हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय दिस मेथड एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। अब एब्सोल्यूट एरर जो कैलकुलेट करेंगे, इसका वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। तो डेट्स वाई हम इसका क्या लेते हैं? मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो अगर हम एब्सोल्यूट एरर को पार्टिकुलर डिफाइन करें तो क्या डेफिनेशन निकल सकता है इसका? इसका डेफिनेशन होगा, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द
डिफरेंस, B/W का मतलब होता है बिटवीन, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू। हम यहाँ पे रब कर देते हैं इस पोर्शन को। इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू टू द मेजर्ड वैल्यू। यानी कि ये डिफरेंस किसका है, मीन वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस का हम क्या ले रहे हैं, बेसिकली मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो इसलिए अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मॉड ऑफ डेल्टा A1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, A बार माइनस A1। हम यहाँ पे मॉड लगा देंगे। सिमिलरली डेल्टा A2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ A बार माइनस A2, डेल्टा A3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ A बार माइनस A3, डेल्टा A4 इज इक्वल टू मॉड ऑफ A बार माइनस A4 अप टू डेल्टा AN इज इक्वल टू मॉड ऑफ A बार माइनस AN। बाय दिस मेथड वी कैन फाइंड आउट द एब्सोल्यूट एरर। Now after that we can find out the concept of mean absolute error. Mean absolute error, it is the arithmetic mean of the magnitude। इस मैग्नीट्यूड को ध्यान में रखना है। इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एब्सोल्यूट एरर। यानी कि जो भी एब्सोल्यूट एरर होगा उसके मैग्नीट्यूड का हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मीन वैल्यू लेंगे। तो इसलिए इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा A मीन लिख सकते हैं, या फिर हम इसको डेल्टा A बार भी लिख सकते हैं। ये मेथड ऑफ इंडिकेशन होता है, नोटेशन होता है जिससे हम इसको इंडिकेट करते हैं। तो हाउ वी कैन फाइंड आउट डेल्टा A मीन या डेल्टा A बार इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मोड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मोड ऑफ डेल्टा A2 अप टू कहाँ तक चला जाएगा, mod of delta AN divided by N। So by this formula, by this mathematical expression, we can find out mean absolute error. After that, one note you can write here, after that one we can write, now we are getting error, formula of error, after that absolute error, mean absolute error। once we measure the quantity, जैसे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन मेजर कर लिए तो हम उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट जनरल मेथड ऑफ एक्सप्रेशन, जनरल मेथड ऑफ expression general method of expression
जनरल मेथड ऑफ एक्सप्रेशन general method of expression to represent general method of expression to represent any measured physical quantity। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हमने मेजर किया तो उसको हम जनरली एक्सप्रेस कैसे करेंगे? जनरल मेथड ऑफ एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट एनी मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो मान लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास ए है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार। दैट इज द फॉर्मेट जिसको हम लिख सकते हैं या ए इज इक्वल टू ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। सो दैट इज द करेक्ट फॉर्मेट फॉर रिप्रेजेंट एनी मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी। After that, how we can find out relative error? We can represent by delta. So delta is equal to delta A mean upon A mean. And when we are writing in terms of percentage relative error, so we can multiply it by 100. That doesn't matter. या delta percentage equal to delta A bar upon A bar multiplied by 100. So these are the mathematical portion which is related to the error. And after that, once we solve one numerical, then only it becomes very clear. समझने के लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आप इसके ऊपर आप एक क्वेश्चन बना लेते हैं तो। उसके बाद हम लोग बहुत सारे देखेंगे, थ्योरेटिकली वे में जाएंगे तो टाइप्स ऑफ एरर देखेंगे। बहुत टाइप के एरर होते हैं, जैसे हमारे पास कांस्टेंट एरर है, सिस्टमेटिक एरर है। सिस्टमेटिक एरर के फिर 4 टाइप्स हो गए, जैसे हमारे पास हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हो गया, उसके बाद पर्सनल एरर हो गया, और एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कंडीशंस हो गया, ये एक्सटर्नल फैक्टर के कारण जो एरर अराइज होता है ये सब भी। उसके बाद रैंडम एरर है, लिस्ट काउंट एरर है, बहुत टाइप के एरर होते हैं। तो एक एक चीज़ करके हम लोग देखेंगे। पहले ये मैथमेटिकल पोर्शंस को हम लोग देख लेते हैं, इसको एक छोटा सा एग्जांपल के ज़रिए हम लोग देखते हैं। ओके, सो लेट अस वी हैविंग वन न्यूमेरिकल्स ऑन एरर। हम इस क्वेश्चन के ज़रिए जितने भी अभी इससे पहले पढ़े हैं, ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके बाद फिर क्या कहते हैं एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, परसेंटेज रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, किसी भी मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इन सारी चीज़ों को इस क्वेश्चन के ज़रिए हम आपको इसलिए इस क्वेश्चन दिए हैं कि इसके ज़रिए आपको एक एक चीज़ को हम अच्छे से क्लियर कर दें। तो चलिए देखिए क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है बोर्ड पे, स्क्रीन के ऊपर देखिए। द लेंथ ऑफ ए रॉड एज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट वाज फाउंड टू बी। जैसे कोई रॉड है हमारे पास, सर्टेन लेंथ का रॉड होगा, उसका जो है डायमेंशन एक्सपेरिमेंट के दौरान मेज़र किया गया, जो कि डिफरेंट टाइम में डिफरेंट रीडिंग लिया गया। जैसे फर्स्ट टाइम में 2.48 आया,
मीटर, 2.46 मीटर, 2.49 मीटर, 2.50 मीटर एंड 2.48 मीटर। तो फाइंड द एवरेज लेंथ। देखिए यहीं पे गौर कीजिए इस क्वेश्चन में, जैसे देखिए मीन वैल्यू को किस तरीके से पूछ रखा है, एवरेज। तो मीन भी बोल सकते हैं, एवरेज बोल सकते हैं, ट्रू बोल सकते हैं, एक ही चीज़ है। एवरेज लेंथ यानी कि मीन वैल्यू में फाइंड आउट करना है, द एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना है इन ईच ऑब्जर्वेशन, यानी कि हर एक मेजर्ड वैल्यू के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है, एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना, एंड द परसेंटेज रिलेटिव एरर। तो चलिए इसको हम प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले देखिए हम इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। कभी भी याद रखिएगा कि जब भी हम फिजिक्स में, या नॉट फॉर फिजिक्स, मैथमेटिकल पोर्शंस को आप जहाँ कहीं भी सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल का एरिया जहाँ भी सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करने के बाद उसमें जितने भी डाटास दिए हुए रहते हैं उसको एज ए गिवन डाटा के तौर पे सॉर्ट आउट कर लीजिए, ताकि आपको क्या होगा कि क्या फाइंड आउट करना है, वो काम करने में आपका बहुत ही आसानी हो जाएगा। तो जितने भी डाटास दे रखा है इसको हम एज ए गिवन डाटा के तौर पर ले लेते हैं। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या क्या हो गया, गिवन हमारे पास क्या क्या है, रॉड का लेंथ है, ठीक है। तो हम इसको L1 L2 करके ही मेजर करते हैं, ताकि कोई मेंशन करते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं हो। तो L1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, फर्स्ट हमारे पास 2.48 मीटर, L2 हमारे पास कितना हो गया 2.46 मीटर, L3 कितना हो गया हमारे पास 2.49 मीटर, L4 कितना हो गया हमारे पास 2.50 मीटर, 50 मीटर, और L5 हमारे पास कितना हो गया 2.48 मीटर। यानी कि टोटल ऑब्जर्वेशंस हमारे पास कितना है 5 रीडिंग है। तो हम सबसे पहला टारगेट क्या है हमारा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये तो हमारे पास एक तरह से क्या हो गया, मेजर्ड वैल्यू हो गया, ये हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है। तो फाइंड द एवरेज लेंथ, यानी कि एवरेज लेंथ का मतलब ट्रू वैल्यू निकालना है। तो एवरेज लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, एवरेज लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए तो एवरेज लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, एल बार, एल बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L1 प्लस L2 अप टू कहाँ तक चला जाएगा L5। चलिए मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमें क्या देगा, दिस इम्प्लाइज एल बार इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू हमारे पास सीधे है 2.48 प्लस 2.46 प्लस 2.49 प्लस 2.50 प्लस 2.48 divided by 5. After that we can find out L bar is equal to, try to find out the true value. This value is coming as either we can solve also 2.48 meter. Okay, so this is just you take it out the average value 2.48, this is also 2.48, 2.46, 2.49, 2.50. so simply you can add and divide it by 5, you can get it out the 2.48 as the mean value. That means this is the true value. After that what we can find out, this portion is complete. After that we can find out absolute error in each observation. That means हमें हर एक का क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो एब्सोल्यूट एरर को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए हर एक का निकालना है तो सिंपल सी बात है, डेल्टा A1 सॉरी लेंथ के केस में तो डेल्टा L1 इज इक्वल टू मोड ऑफ L बार माइनस L1। तो दिस इम्प्लाइज डेल्टा L1 हमारे पास कितना आ जाएगा, मोड L बार हमारे पास कितना है 2.48
माइनस L1, तो L1 हमारे पास कितना है 2.48, इसमें कितना एरर आ गया 0। इसके बाद दूसरे का एरर निकालेंगे डेल्टा L2। डेल्टा L2 इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, मोड ऑफ L बार माइनस L2। ऑटोमेटिकली व्हाट वी कैन गेट इट आउट 2.48 माइनस L2 2.46, so this is mod 0.02 0.02 delta L3 mod of L bar minus L3, simply we can get it out 2.48 minus 2.49, that value is coming as mod minus 0.01 minus 0.01, so after that 0.01 because we are keeping the mode. After that delta L4, similarly L bar minus L4 value 2.48 minus 2.50, so minus 0.02 mod, after that 0.02, similarly delta L5 2.48 minus 2.480, like that one we can calculate. Note it down. Okay, so in this way we can find out the absolute error. Now we are getting the mean absolute error. So how we can get it out? How we can indicate mean absolute error? Mean absolute error delta L bar. Delta L bar is equal to mod of delta L1 plus mod of delta L2, like that one mod of delta L5 divided by 5. So this implies delta L bar is equal to, already we having value in delta L1, so this value is coming as 0 plus 0.02 plus 0.01 plus 0.02 plus 0, 1 2 3 4 5 divided by 5. This value is how much coming? 0.02 0.02 0.04 and 1 5. Okay, 0.05 divided by 5. So what happened here? Automatically if you divide this one, this is 0.01, so we can put it out here as meter, so this is coming in meter. Okay, so now in this way we can find out the mean absolute error. Now how we can represent? So another part is measured physical quantity. Measured physical quantity becomes or expressed as, यानी कि जो भी हमारे पास मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे. तो लेंथ के केस में है तो L इज इक्वल टू हमारे पास L बार प्लस माइनस डेल्टा L बार होना चाहिए. तो दिस इम्प्लाइज L इज इक्वल टू L बार हमारे पास कितना निकला था 2.48 प्लस माइनस पॉइंट, मीन एब्सोल्यूट एरर कितना निकला 0.0 मीटर. सो दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट for representing any measured physical quantity. After that we can find out relative error. How we can write out percentage relative error? Percentage relative
error. So percentage relative error of which expression? This expression we can write out. So this is coming as delta L by L percent equal to, yeah, simply we can write delta equal to delta L bar upon L bar into 100. Delta L is 0.01 upon 2.48 multiplied by 100%. This decimal remove, 100 cancel out, so this is approximately 1 by 2.48%. just in round up we can calculate out. Can we consider this is what we can do? Suppose this is 100, okay, and okay, just we remove this decimal, it becomes 100 by 248. So 100 divided by 248, 100 divided by 248, decimal 0. Approximately what we can take it out? 250. How many times? 1000, 4 times. So approximately how much value is coming as? 0.4%. This is coming as 0.4%. So I hope in this way, by this numerical concept becomes very clear. Okay, thank you.